ذوالفقار صاحب 6 سابق وزراء اعظم کے خلاف، صدر کے خلاف بہت سارے کیسز کھلنے تھے جو کہ تقریباً کھل بھی چکے ہیں. اس کے خلاف اپیل ابھی دائر کی گئی ہے. نیب ترمیم کا جو حکم آیا تھا عدالت کی طرف سے، آپ کے خیال میں آئندہ سیاست یا آئندہ الیکشن میں کون سب سے بڑا بینیفیشری ہو سکتا ہے اس اپیل کے بعد؟ دیکھیں، اس اپیل کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے نیب کی چونکہ بات ہو رہی تھی، نیب کو دیکھیں اس کی جو روح تھی وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا. بدقسمتی یہ ہوئی کہ نیب کے چیئرمین کے لیے آپ نے طے کر دیا کہ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم مل کے مشاورت کر کے اس کو تعینات کریں گے. جو انڈیپینڈنس کی روح تھی وہی ختم ہو گئی. اس کے بعد ایک بڑا جو ریئل اسٹیٹ کا ٹائکون ہے، دبئی میں بیٹھ کے اس نے 2 آپ کے چیئرمین فائنل کیے، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا. نامی طور پہ وہاں پہ بلوایا گیا، اور وہاں پہ ایک فصیح صاحب تھے اور جوید اقبال صاحب تھے. اچھا، جوید اقبال صاحب بھی انہوں نے لگوایا. اس کے بعد میں عینی شاہد کی بات کروں جو اس میٹنگ میں موجود تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ نیب کے اندر بھی سیاسی بھرتیاں ہوئیں، جیسے پی آئی اے کے اندر ہوئی، جیسے اسٹیل مل کے اندر ہوئی. کس ادارے میں نہیں ہوئی اچھا، سیاسی وہاں بھرتیاں؟ پہ جو آپ ادارہ بناتے ہیں اس ادارے کی اگر روح ختم کر دیں گے، اس کو پولیٹیسائز کر دیں گے. ویسے اگر آپ کہتے ہیں جو ڈیلیور نہیں کر رہا اس کو بند کر دیں، پھر تو پی آئی اے کو پہلے بند کریں، پھر ریلوے کو بند کریں، اور سب سے بڑا مسئلہ اس اسمبلی کو بند کریں. بھئی جس مقصد کے لیے آپ نے پارلیمانی سسٹم بنایا ہے وہی ڈیلیور نہیں کر رہا، پھر آپ عدالتوں کی بات کریں گے کہ عدالتیں اچھا نہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں بات نہ ہو اس لیے آپ نیب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ اس ادارے کو ٹھیک کریں، بند کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ادارہ جو اس کی روح ہے اس کے مطابق اس کو کام کرنے دیا جائے. یہاں پہ کون کرنے دے؟ جو حکومت ہوتی ہے وہی تو اس سے کام لیتی ہے. جو بااختیار لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں جو انسانی حقوق، نو عدالتیں، یہاں پہ کیس جان بوجھ کے اس طرح کے بنائے جاتے ہیں، جان بوجھ کے اس طرح کی ساری پروسیکیوشن ہوتی ہے، اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلتا، اور یہ پیچھے مافیاز ہوتے ہیں، اور یہ مافیاز ہیں جو کام کرنے کسی کو دے ہی نہیں رہے. دوسری بات رہے کہ یہ اپیل کی، دیکھیں اس کی ٹائمنگ اس وقت بھی بڑی امپورٹنٹ تھی اور آج بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. بنیال صاحب نے جاتے جاتے اس کیس کا فیصلہ کر کے گئے، اور اس کے بعد جتنی سپیڈ سے کیس کھلے ہیں اور جتنے اہم لوگوں کے کیس کھلے ہیں، میری اطلاع کے مطابق یہ بند ہونے کے لیے نہیں کھلے. لیکن چونکہ اب اس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا تھا، ٹائم بارڈ ہو گیا تھا کیس، لیکن وہ اب کہتے ہیں کہ چونکہ پروسیجر اینڈ پریکٹس کیس کی وجہ سے اب موقع مل گیا، ایک ریمیڈی مل گئی، تو ہم اس کی اپیل میں جا رہے ہیں. اچھا، اپیل میں بھی نگران گورنمنٹ جا رہی ہے فیڈریشن کے خلاف، نیب کے خلاف. یعنی ایک اسمبلی نے فیصلہ کیا اور نگران گورنمنٹ اس کو چیلنج کر رہی ہے. حالانکہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک طرف نگران حکومت کرپشن کے خلاف کام کر رہی ہے، دوسری طرف کرپشن کی حفاظت کے لیے بھی پریشان ہے. تو ہر عام آدمی سوچ رہا ہے کہ یہ 2 کام اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں. ٹھیک، لیکن اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں. دیکھیں یہ انٹرم گورنمنٹ گئی ہے، اس کے پیچھے آپ دیکھتے ہیں کون کون سے لوگ ہیں جو پی ایم ایل این کے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے بیچ میں بیٹھے ضرور ہیں، لیکن نگران گورنمنٹ کا بھی ایک دیکھیں نا. اچھا چلیں نیب کے بارے میں کرپشن کی نگرانی کے لیے تو نہیں، وہ تو الیکشن کی نگرانی کے لیے. آپ نے ذکر کیا پی ایم ایل این کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو بھی الیکشن ان کو نوٹس آ گیا، نوٹس دے دیا. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو ابھی عدالت فیصلہ کرے گی کہ اس کیس کا کرنا کیا ہے، آگے جا کے اس کو کیسے لے کر چلنا. ظاہر ہے جسٹس قاضی فائزی صاحب بھی اپنا کچھ نہ کچھ مائنڈ رکھتے ہوں گے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس کیس کو. جیسا انور صاحب کہہ رہے ہیں ویسا میں بالکل بھی نہیں چاہتی، لیکن میں چاہتی ہوں کیونکہ پولیٹیکل پرپز کی بات ہوتی ہے کہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان معاملات پہ بھی بات کر دی جائے جو آج کل پولیٹیشنز کے درمیان چل رہے ہیں. سر، بہت ٹائم سے صدر صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی ویک نظر آ رہی تھی، کوئی سمجھ نہیں آ رہا. پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ان کو گالیاں اور باتیں سننے کو مل رہی تھی، اور وہ مطلب کہیں کے نہیں رہے بیچارے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا مستقبل کیا ہوگا. ابھی پی ٹی آئی نے ان کو درخواست کی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے مذاکرات کرائیں. اب پی ٹی آئی کو کسی اور کی نہیں پڑی، وہ ظاہر ہے اپنی بات کر رہے ہیں. اس مذاکرات کی جو فرمائش ہے، اس کا ایجنڈا آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا آئندہ الیکشن کے لیے وہ راستہ چاہتے ہیں، یا فوجی عدالتوں میں کیسز نہ چلے وہ یہ چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے؟ دیکھیے بنیادی سوال سلمہ اس وقت یہ ہے کہ صدر صاحب اپنی آئینی مدت پوری کر چکے ہیں. اس وقت جو بیٹھے ہیں کسی اور کے سہارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ان کو بہت سارے، جب آپ نے دیکھا انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جو اپوزیشن کے خلاف تھے، یا پیپلز پارٹی پی ایم ایل این پی ڈی ایم سمجھتی تھی کہ یہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، تو انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ جی آپ نیچے اتریں، آپ گھر جائیں. مریم نواز صاحبہ نے کہا، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بھی آپ مفت میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو جانا چاہیے. دیکھیں اسٹیج پہ سوائے اس کے کہ پی ٹی آئی بالکل آئسولیشن کا شکار ہے. اب ان کو لگ رہا ہے کہ جی کوئی گورنمنٹ میں بندہ ایسا نہیں ہے، گو بٹوین کوئی نہیں رہا. کوئی ایک زمانے میں نوازادہ نسلہ جیسی ٹاورنگ پرسنالٹی ہوتی تھی، وہ بیچ بچاؤ کرایا کرتی تھی. اب عارف علوی صاحب کنٹروورشل ہو گئے کئی حوالوں سے، جس طریقے سے ان کا رول ہونا چاہیے تو نہیں کیا. لہٰذا مجھے نہیں لگتا کسی طرح بھی جو ہے نا وہ کوئی اس میں کوئی اہم رول پلے کر سکتے ہیں.
हाँ, एक चीज बड़े वाज़ेह तौर पे है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल हम देख रहे हैं बड़े वाज़ेह तौर पे, और इस्टेब्लिशमेंट ने आजकल बल्कि पिछले 2.5-3 महीने में जो काम करके दिखाए हैं, बेशुमार लोग जो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी जमहूरियत का फसाद खत्म करें। बल्कि अबीब अकरम आप देख रहे हैं सारे जगहों पे जाके इंटरव्यू लोगों को कर रहा है हमारा सावी भाई, और लोगों की बॉडी लैंग्वेज अनवर रजा ये बताती है कि हमें कोई दिलचस्पी नहीं यार, हमें आप चीजें सस्ती करके दें। आई थिंक बाय द वे वर्ल्ड बैंक की किसी और रिपोर्ट भी आई है, वो कहते हैं पाकिस्तान का 3रा नंबर महंगाई में टॉप पे, और आप देख लें जिसमें 29.5% महंगाई, श्रीलंका जो डिफॉल्ट का शिकार हो गया था 2% महंगाई। एशिया में हम पहले नंबर पे हैं, दुनिया में तीसरे नंबर। सलमा, ये जो एशिया में नंबर 1 है। देखना, ये जो इंटरम सेटअप में हो रहा है और जो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, इससे तो ये वाज़ेह पैगाम है कि जो मुंतखब हुकूमतों में नहीं हुआ, इसका मतलब उनकी विल नहीं थी, उस पॉलिटिकल सिस्टम कर दिया ना इस सिस्टम ने। एक बात ये एक तो पॉलिटिकल विल के साथ चलने, सारे मामले को थोड़ा सा इस तरह भी देखना चाहिए, क्योंकि सियासी बात भी हो रही है। सियासी बात इस तरह कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब की जो मुश्किलात हैं वो तो मेरी नजर में अब कोई नहीं रही। अब उनकी मुश्किलात हैं पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी वही जरदारी साहब जो उनको कहा करते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखें, आज उनसे नाराज नजर आते हैं। यही रवैया फजल रहमान साहब की नजर आ रहा है। अच्छा, लेकिन ये जो डायलॉग असल मसला PMLN का ये है, नवाज शरीफ का ये है कि उनके पास कोई बयानिया नहीं है। असल मसला उनका ये है कि जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई का प्रॉब्लम हो, डॉलर्स का फुकदान हो, उसका फ्यूचर विजन कोई नहीं है, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, ये तो नून लीग के मसाइल है, लेकिन इसमें PTI का डॉक्टर साहब मसला साहब जो कह रहे हैं कि उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। देखिए, ये मसला है, सबसे बड़ा मसला है लोग कहाँ से लाएंगे। देखिए, शादी टाइप फंक्शन करके भी देख लिए, लोग नहीं आए। निसार अली खान और शाहिद खान नवासी की मुलाकात है, जिसकी वजह से स्पेशल एक मीटिंग हो गई है, डिसिप्लिन मीटिंग हुई है एक बयान की वजह से। इसके अलावा इतने बड़े चैलेंज हैं। खुर्शीद शाह साहब बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के तरफ से अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं। इन चीजों की तरफ मैं सोचता हूं कि बहुत बड़े चैलेंज हैं। माशी मामला बताएं। माशी मामले पे एंड पे जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ पहले जरा PTI की जो फरमाइश है मुज़ाकरात की, आपको क्या लगता है? ये तो कल तक डायलॉग से भागते थे, कहते थे हम बात नहीं करेंगे, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हम किसी से बात करने को तैयार नहीं है, ना सियासी जमातों से ना एस्टेब्लिशमेंट से। अब क्यों खुद अपने देखिए सलमा, बातचीत डायलॉग जो है वो जमहूरियत का एक, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। जमहूरियत के अंदर डायलॉग मस्ट है, सही। लेकिन यहाँ पे तफरीक ये करनी होती है कि डायलॉग और जुर्म के दरमियान में एक तफरीक है। देखिए, एक तो प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमारी तकरीबन सारी की सारी सियासी जमातें जो हैं वो पर्सनैलिटी ड्रिवन है, उसमें एक शख्सियत होती है जो पूरी पार्टी को चलाती है। अब यहाँ पे बैठे हैं अलीमा के भाई साहब, और उन्होंने जो सफर है अपना मुल्जिम से मुजरिम तक का वो तय कर लिया हुआ। तो शहाना केस में उनको 3 साल की जो है वो सजा सुना दी गई है। साइफर केस गरम है, उसके ऊपर बड़े बड़े गवाह सामने आ चुके हैं। और तीसरा वाला वो जो May 9 वाला केस है, उसमें भी सुना यह गया कि 2 दर्जन के करीब गवाह ने जिन्होंने 164 का बयान दे दिया है कि ये मास्टर प्लान वादा माफ गवाह बन चुके हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मास्टर डिजाइनर जो है वो अलीमा के भाई थे, इन्होंने ये सारा कुछ प्लान किया। अभी तो सबके अब मुझे आप बताएं कि जब एक शख्स जो है वो मुजरिम, उससे डायलॉग कौन करेगा? चाहे आप, वो कह रहे हैं हमने एस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग करना है। देखिए, डायलॉग होता है सियासी जमातों के दरमियान। एक सियासी जमात दूसरी, वो चाहते होंगे कि उनकी सियासी मुश्किलात कम हो जाए। एक जुमला ऐड करने में, पाकिस्तानी सियासत बड़ी पिकुलर है। यही मरूमा बेनजीर जो सिक्योरिटी रिस्क थी प्राइम मिनिस्टर बनी, यही नवाज शरीफ साहब जिनको के बारे में क्या कहा जाता था, हाईजैकर, वो प्राइम मिनिस्टर इसीलिए कहते हैं मतलब है कि तीनों जो मैं यही कहने लगा था डॉक्टर साहब, आपकी बात को जरा आगे बढ़ाऊं। देखिए, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। कल तक कुछ जिलावत वो आपके प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आ रहे हैं, जो सिक्योरिटी रिस्क थी वो भी आपकी बन गई प्राइम मिनिस्टर। देखिए, मुझे जो लग रहा है, अब जो आपने बात की ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल उनको निचोड़ देगी। ठीक, जब उनकी मर्जी होगी, जब उन्होंने अपने चीज़ों को बेहतर करना होगा, जो मौजूदा सेटअप होगा, अगर परफॉर्म ना किया उनकी मर्जी के मुताबिक, तो फिर अगर उसकी जरूरत पड़ी तो उसको भी लेकर आएंगे। तो भी जेल में बैठे हुए हैं, इनसे तो क्या तवक्कुह मैं इनकी बात नहीं कर रहा। ना आप अंडरस्टैंड नहीं कर रही। मैं कह रहा हूँ, लेट्स सपोज अगर कोई भी मखलूत हुकूमत आती है, जो भी इंतखाबात के नतीजे में गवर्नमेंट बनती है, अगर उन्होंने परफॉर्म ना किया इनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट की, जिस तरह माजी में आपने देख लिया था अलीमा की बहन की बात कर रहा हूँ मैं, जो नहीं होने वाला। अच्छा, देखिए ना, मैं बताऊँ ना, अगर देखे ना, एक तो ये तो बयानिया की आप बात करें ना, वो डॉक्टर साहब, वो एक एलिमेंट जरूर है कि आपके पास बयानिया
दुनिया क्या होगा जी। अवाम के साथ साथ आपने इन चीजों पर नहीं आप तवज्जो देते कि जो मैटर करती हैं, कि जो रिजल्ट्स को तब्दील कर देते हैं, जो कोई मुख्तदर हल्के चाहते हैं, जो फैसला चाहते हैं, वो वही कर पाते हैं। उनको भी तो देखे ना, अवाम को निकालना। फिर जब आपने चीजों को देखना, सियासी इंजीनियरिंग किसको कहते हैं कि आपने सब कुछ चीजों को बेहतर करना। देखना आप 50-50 तो कर सकते हैं ना, ये तो हो सकता है, माजी में भी होता है, ये कैसे मुमकिन है। हाँ, जहां तक इंतखाबात की बात है, ये जो हमें जो डर लगता है श्याम साहब, वो ये है कि पेट्रोलियम प्राइसेस 40 रुपए कम होगी, 40 रुपए वो कम हुई, आपका वो स्टॉक एक्सचेंज कितने ऊपर गए, 50,000 पॉइंट्स तक चली गई। ये जो चीजें ये इंडिकेट करती हैं, और पब्लिक का ओपिनियन क्या है, वो कहते हैं कि हमें अपने मसाइल के हल का वो एस्टेब्लिशमेंट करे, निगरान सेटअप करे, उनको इलेक्शन देखना उस इलेक्शन का क्या फायदा कि जिससे अवाम मसाइल ना हल हो, एक बात। और दूसरी, अवाम को क्या लेना देना यहाँ पर जमहूरी सेटअप हो या निगरान हो या एस्टेब्लिशमेंट करे। अवाम अब ये कहने पर है कि हमारे मसाइल हों, जो मर्जी सेटअप। बिल्कुल ठीक है। जुल्फिकार साहब, अनवर साहब ने मुझे मौका नहीं दिया, इसलिए आपसे 3 चीजों का जवाब मुझे चाहिए। एक तो ये कि इस वक्त खान साहब के लिए असल मसला क्या है, उनके मुशीर मसला है या उनके वकील मसले जो हर जगह जाकर लड़ाइयां झगड़े कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ की सऊदी अरब में मुलाकातें जारी हैं हुक्काम के साथ, क्या कोई डेवलपमेंट हो रही है, कोई चीजें तय हो रही है, क्योंकि आगे उन्होंने आके उनको शायद ये मैसेज मिला है कि उन्होंने गवर्नमेंट संभालनी है। तीसरी चीज ये कि मौलाना और आसिफ जरदारी हरीफ थे, लेकिन आसिफ जरदारी साहब चल के फजलुर रहमान के पास चले गए। देखिए सलमा, जो मुलाकातों की बात हो रही है ना, पीटीए के जो लोग गए हैं, मैं इनकी सिर्फ बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। शफकत महमूद साहब वो हैं जो शहबाज शरीफ साहब के पास बाकायदा तौर पे मुलाजमत करते रहे हैं, उनके बहुत करीबी हैं, आज भी समझे जाते हैं। फवाद हसन फवाद के दूसरे भाई हैं रऊफ हसन साहब, जो फवाद हसन फवाद के रियल ब्रदर हैं, जो भी तर्जुमानी कर रहे देखिए हैं। आप सोच नहीं सकती कि कहां से किस किस की कैसे कैसे डोरी हिलाई जाती है, किसकी क्या ड्यूटी होती है। बास का पीटीए के अंदर लोगों की भी ड्यूटी लगी होती है। सही। जैसे 2 गवर्नमेंटें खत्म हुई थी कासिम के अब्बा की, उस वक्त भी फील्डिंग लगी हुई थी, उस वक्त भी ड्यूटी थी पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी, और वो गवर्नमेंटें खत्म करवाई गई। उसके 2 मोर्चे थे, 2 खत्म करवाए गए। आज भी एक माहौल ऐसा मसरूई किस्म का बनाने की कोशिश हो रही है। 2 बंदों को कह दिया कि आप जाके मुलाकातें करें, उसकी तस्वीरें रिलीज कर दी, मीडिया में चलाई जा रही है कि जी साहब अच्छा है जी, कोई बात ही नहीं, किसी को गिदड़ कुट लगी नहीं, किसी का कुछ हुआ ही नहीं, ये तो सब ठीक हो रहा है, मफामत हो रही है, ये हो रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। सही। पीटीए की मुलाकात का मकसद उस दिन है जिस दिन रीमा खान करेगी या जो जेल में साहब बैठे हुए हैं उसकी कंसेंट से चीजें सामने आएंगी, तो फिर आप समझेंगे। पीटीए की लीडरशिप जो बिखरी हुई है, आप कह रहे हैं कि उनके वकला का इशू है, फलाना इशू है, सबके इश्यूज हैं, उनका कोई नज़्म ज़ब्त बेचारों का है ही नहीं। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो इस तरह बेलगाम है पार्टी। दूसरी बात, आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब चूंकि उनके कंधों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ने वाला है, तो वो बड़े फिक्रमंद है और परेशान है और मुलाकातें कर रहे हैं। नहीं, ये मैंने नहीं कहा, मैंने मुलाकातें मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। इन्होंने अपनी ख्वाहिश तो कर बोर हो गया, आपने रखकर अपनी ख्वाहिश कर मैंने शाम भाई को खुश करने के लिए 2 फिक्रें ऐड की, क्योंकि इनका रोजाना इतला मिलती है ना कि वो सारा क्लियर हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि जितनी सियासतदानों ने स्पेस सरेंडर कर दी है सलमा टूवर्ड अदर्स, वो वापस सियासतदानों को मिल सके। इलेक्शन कोई नहीं होने जा रहे, मैं तवातर के साथ ये कह रहा हूँ, इलेक्शन बिल्कुल नहीं हो रहे। कुछ लोगों को शायद नजर आ रहे हैं, कब तक नहीं हो रहे। सियासतदान जितनी स्पेस सरेंडर कर चुके हैं, ये वापस इनको नहीं मिल सकती। और दूसरी बात, इलेक्शन होंगे सलमा, दूसरी बात, आज जो अनवर साहब ने बात कही है कि आज ये निगरान जो इलेक्टेड भी नहीं है, अगर इनकी वजह से हालात ठीक हो रहे हैं, जो इलेक्टेड है उनकी वजह से तबाही फिर गई है पिछले 16 महीनों में, तो क्या पड़ी है? तो आप मुझे बताएं कि क्या कौम को मुतालबा कर रही है कि हमें फिर वही चाहिए? क्या कुछ 10 लाख बंदा सड़कों पे आ गया, ये सब कुछ निगरानी 10-20 लाख बंदा सड़कों पे आ गया कि हमें वो वापस चाहिए। माजरत के साथ ऐसे हालात आपने कोई टूटा फूटा भी निजाम चलाना है ना, उसके लिए आपको जमहूरियत को इलेक्शन आप बेफिक्र हो जाए, निजाम भी हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी, तब्दीली भी हो जाएगी और पाकिस्तान बेहतर चलता हुआ नजर आएगा। जमहूरियत लोगों ने तो यहाँ से कहना शुरू कर दिया, ये कंटिन्यू कर रहा है ना, पाकिस्तान बेहतर इससे चलता हुआ पहले नजर की आएगा। लड़ाई, वो स्टूडियो में एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं हमारे।